Hello students, this is the second video of this lesson. In the first video, we have learned about the matter, the particulate nature of matter and properties of matter, even the meanings of substance and mixture. Okay, all this, even I can say that it is the introductory part of the lesson. Okay, now we are moving to the main part of the lesson, that is elements, compounds and mixture. In that, now in this video we are going to learn about elements and compounds. Okay, so let us start with the point elements. What is the meaning of elements? What are they? What are their properties and all that? Okay, details about elements. Try these activities there. Take water in a teapot and cover it. Heat the water to a boil. What do you see on the inside of the lid? ओके एक टीपॉट पे नहीं तो इवन अपना यूटेंसिल होगा. ओके कौन सा भी पानी गर्म करने का उसमें पानी ले लो. ओके उसको कवर करके रखना है. ओके जो नेचुरली इवन आप लोग किचन में भी देखते होंगे. ओके अगर कुछ पानी वगैरह गर्म होने के लिए रखा उसको कवर करके रखना है. उसको उसके ऊपर लीड यानी कुछ ढक्कन रखना है. ओके एंड हीट इट. ओके आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू सी इनसाइड द लीड? We see that in some water droplets they are stuck to the lid from downside. Okay, जैसे ही वो ढक्कन हम लोग निकालते हैं उसको नीचे पूरा पानी नीचे से ऐसा पानी चिपका हुआ दिखाई देता है. Okay, second point is given. Fill water in a spray pump. Spray the water and observe the spray. Okay, इवन आजकल अभी ये जो कोरोना की पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्प्रे यूज किए गए. ओके तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि when we spray the liquid, any liquid or even water also, okay, we see that the water when it is sprayed it gets divided or gets separated into small droplets. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे दिखाई देते हैं पानी की. अगर कहीं भी वाटर पानी का स्प्रिंकलर वगैरह अगर कुछ लगा है ओके तो हम अगर कुछ ऐसी एक जगह पर आसपास कहीं खड़े हैं तो वहां पर भी आप लोगों को फील आता है कि कुछ पानी के छोटे छोटे कुछ तो भी बूंदे हम पर गिर रहे हैं. ओके यानी वो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं which mixes with the air. Okay, and they move or fly with the air. Next point, the water droplets collected on inside of the lid of a teapot are formed by condensation of the vapor from the boiling water. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot see them. Okay, now means when we heat the water which was kept in the either teapot or in some other utensils and it was heated. Okay, the lid was kept upside on that. When the water gets heated, the hot water turns into water vapors and those water vapors they stick to the lid. वो नीचे से लीड को नीचे से जाकर चिपक जाते हैं. ओके क्योंकि जैसे वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो हल्का हो जाता है. द वाटर बिकम्स लाइटर. जब पानी हल्का हो गया तो वो ऊपर निकलता है. तो ऊपर का है लेकिन ऊपर तो हमने ढक्कन लगा कर रखा है तो वो ढक्कन को जाकर नीचे से चिपकते हैं. ओके एंड एज वी ओपन द लीड जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं ओके दोज वाटर वेपर्स दे कम इन कांटेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एंड उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. तुरंत कम हो जाता है. जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है ओके फिर से उसका क्या होता है कंडेंसेशन होता है. मीन इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट. ओके दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड कंडेंसेशन हो गया कि द वाटर वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू वाटर और हम लोगों को लगता है कि हाँ वो ढक्कन को नीचे से पानी चिपक रहा था लेकिन ढक्कन खोलने से पहले इट वाज इन द गैस स्टेट. Okay, let us move ahead. Next point is given. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot see them. Okay, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? बहुत टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. यानी हम लोगों को जो आंखों से दिखाई देता है वो तो बहुत बड़ा होता है, उससे भी बहुत छोटा होता है ओरिजिनली. Okay, which we cannot see them. Even in the air also we cannot see water in the air, but tremendous water is present in the air also in the gas state.
Okay, you will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances are made up made up of extremely tiny particles. The smallest particles of substances are called molecules. Okay, so from this what do we understand? That every substance, okay, in the first video we have seen the meaning of substance. Substance किसको बोलते हैं? Matter made of only one constituent is called a substance. This we have learned in first video. तो कौन सा भी सब्सटेंस ले लो, every substance is made up of the small particles, okay, और tiny particles, extremely tiny particles, जो हमारे आंखों को भी दिखते नहीं है. Okay, all these smallest particles, okay, वो जो होते हैं, तो हर एक पार्टिकल को क्या बोला जाता है? That is called as molecule. Okay, a substance whose molecules are made up of one or more atoms which are exactly alike is called an element. This is the meaning of element. Okay, क्या मीनिंग है element का? A substance whose molecules are made of one or more atoms. कौन सा भी सब्सटेंस ले लो, अगर उसके मॉलिक्यूल एक नहीं तो ज्यादा एटम्स के बने. एटम मतलब क्या है? सिंगल. मॉलिक्यूल मतलब क्या है? पेयर में दो है, तीन है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स. जब ये एटम्स का ग्रुप तैयार होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. ओके, जो अगर सिंगल हो गया तो देन दैट इज कॉल्ड एज एटम. तो अगर ये एटम का ग्रुप हो गया तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. ओके, देन एनी सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स. कौन सा भी सब्सटेंस ले लो, अगर उसके मॉलिक्यूल्स अगर एक नहीं तो ज्यादा एटम का अगर बने हुए हैं, ओके, बट कंडीशन इज देयर विच आर एग्जैक्टली अलाइक. लेकिन वो सारे के सारे एक जैसे ही होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज सेम चाहिए, उनका एवरीथिंग दे शुड बी ओनली ऑफ वन क्वालिटी वी कैन से. थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रहा हूं, लेकिन वो वर्ड यूज करना नहीं कहीं. विच आर एग्जैक्टली अलाइक, सारे के सारे एक जैसे ही है, देन सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एलिमेंट. तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. एलिमेंट मतलब क्या है कि ऐसी वस्तु नहीं तो ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे एक जैसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. राइट, लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट पैराग्राफ. We do not get different substances by the decomposition of an element. The smallest particles of elements are made of only one type of atoms. We cannot see atoms with the naked eye, but when crores of atoms come together, their total volume is large enough to be visible to our eyes. The mass and volume of atoms are different, elements are different. Okay, so what points are here? 3-4 points are mentioned in this paragraph. Okay, what is it? First point, we do not get different substances by the decomposition of an element. कौन सा भी एलिमेंट का अगर डिकम्पोजिशन अगर हम लोग करते हैं तो उससे हमें अलग अलग सब्सटेंस मिलेंगे नहीं, एक ही सब्सटेंस मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो ये एटम्स हैं वो सारे एक ही टाइप के. अगर एक टाइप के अगर एटम्स है तो फ्रॉम दैट वी गेट ओनली वन सब्सटेंस. ओके, नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. ओके, सो सबसे छोटा जो पार्टिकल बना हुआ होता है एलिमेंट का, वो सारे के सारे एक टाइप के एटम्स होते हैं, उसमें उसके अंदर कुछ मिक्सचर नहीं होता है. ओके, समझो गैस है, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी गैस, सपोज ऑक्सीजन गैस, तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बाकी दूसरे किसी गैस का एटम मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देगा. ओके, सच इज कॉल्ड एज एलिमेंट. देन वी कैन नॉट सी एटम्स विथ नेकेड आई. ये एटम्स हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते. ओके, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. But when crores of atoms come together, their total volume is large enough to be visible to our eyes. Okay, and if you want to see these atoms, then what we need to do? Then we have to bring many of the atoms together. And then when many atoms, crores and lakhs and crores of atoms are brought together, then they become visible to our eyes. The mass and volume of atoms of different elements are different. Okay, अलग अलग
एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास और वॉल्यूम अलग अलग होता है। ओके, नेचुरली होना भी चाहिए क्योंकि वो अलग है। ओके, सपोज हाइड्रोजन का एटम है, उसका मास और वॉल्यूम ऑक्सीजन के एटम के मास और वॉल्यूम से अलग ही रहेगा। दैट इज व्हाट इट्स स्पेशलिटी इज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, डू यू नो, to date, scientists have discovered 118 elements. Of these, 92 elements occur in nature, while the remaining are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are a few of the important natural elements. Natural elements का मतलब the elements which occur naturally, जो already nature में present है। ओके, ऐसे elements को बोलते हैं natural elements। ओके, तो आज तक पीरियोडिक टेबल अगर किसी ने देखा होगा, शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने देखा है तो उसमें इन दैट यू सी 118 elements names you will find there. Okay, so up till now scientists have found 118 elements. Okay, उसमें से 92 कौन से है? नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द नेचर। बाकी के जो है 18 + 8 26, ओके, दे आर मैन मेड। ओके, वो तो उनको तो साइंटिस्ट ने बनाया है, थोड़ा सा कुछ उसमें से कुछ चेंजेस करके करके वगैरह ऐसा बनाया। So here examples are given of some of the natural elements, that is hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper. Okay, all these are the examples of natural elements. ये already nature में present है। Okay, more new elements are being discovered through research work. और भी कुछ साइंटिस्ट लोगों की अभी भी कुछ चल रही है डिस्कवरी, उनकी खोज चल रही है। ओके, टू फाइंड आउट न्यू एलिमेंट्स। Then some information about the great scientist is given, that is Democritus. Okay, great scientist. Democritus named the small particles of elements atom because in the Greek language atomos means invisible. एकदम परफेक्ट मीनिंग उन्होंने, परफेक्ट वर्ड उन्होंने सिलेक्ट किया है, एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजिबल यानी विच इज नॉट डिविजिबल। जैसा मैथ्स में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर को डिवीजन नहीं होता, वैसे ही एक छोटे से छोटा पार्टिकल, एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जिसका आफ्टर दैट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एक को दो में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज, इन ग्रीक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज एटोमॉस, एंड नॉर्मली इन आवर रेगुलर इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज एटम। In 1803, John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. Okay, this statement is also related with the statement of Democritus. What John Dalton said, that he proposed his theory in that he stated that any atom cannot be created, हम लोग उसको तैयार नहीं कर सकते, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ओके, स्मॉल पार्टिकल्स में, ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ओके, we cannot create the atoms, we cannot divide the atoms, and we cannot destroy the atom. These 3 points John Dalton stated. Okay, John Dalton used certain symbols to represent the elements. Okay, उन्होंने ऐसे सिंबल दिए थे, कार्बन को ऐसा दिया था, सल्फर को प्लस साइन ऐसा सर्कल करके, हाइड्रोजन को ऐसा। ओके, it is not in our daily use because this theory was not accepted, this naming theory. Later on, the another theory is accepted by all the scientists. Okay, next, oxygen occurs in nature in the gaseous state. 2 atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen which has an independent existence. Oxygen in air is always in molecular state. Just like atoms, molecules also cannot be seen with naked eyes. Okay, here example is given of the oxygen. Oxygen, it occurs, it is found in the nature, in which form? In the gaseous form or gaseous state. Okay, और उसके atoms वो single they never exist in the single state. Okay, always they form a pair. Pair means यानी 2 atom ऑक्सीजन की, यानी वो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन means it forms O2. Okay, जनरली आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन का नाम ऐसा O2 लिखा जाता है, O और उसके नीचे 2। तो O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ओके, ऑलवेज दे रिमेन जॉइंड टू ईच अदर एंड मींस व्हाट? इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। ओके,
विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, वो किसी दूसरे गैस के साथ कभी मिक्स होते नहीं। ऑक्सीजन इन एयर इज ऑलवेज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेज में होता है वो। जस्ट लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स आल्सो कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ओके, लेकिन क्या है, ठीक है हम लोग एक एटम तो देख नहीं सकते, लेकिन ठीक है एक के साथ एक जुड़ गया, क्या दिक्कत है, वो नहीं दिखाई देता। ओके, फिर भी बहुत छोटा है वो, छोटा होता है वो। अगर एक साथ अगर हमें देखना है तो उसके लिए कितने लगा चाहिए, लैक्स एंड करोर्स ऑफ एटम्स शुड कम टुगेदर, देन वी विल बी एबल टू सी विद आवर आईज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यूज योर ब्रेन पावर। Which elements are present in air? Elements, कौन से elements हवा में होते हैं? Then hydrogen is there, oxygen is there, okay, nitrogen, then like this such are present in the air. Okay, then is carbon dioxide an element? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है क्या? तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कार्बन भी होता है ना ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या वो एलिमेंट होगा क्या? नहीं है। ओके, तो नेचुरली इट इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, क्योंकि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एक ही टाइप के एटम चाहिए, लेकिन इसके अंदर दो टाइप के, कार्बन का भी एक एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स, इसीलिए वो दैट इज नॉट एन, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एलिमेंट। Then are the atoms of different elements similar or dissimilar? Okay, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स सिमिलर रहेंगे या डिसिमिलर रहेंगे? अगर वो अलग अलग एलिमेंट्स के अगर वो एटम्स है तो वो नेचुरली दे विल बी डिसिमिलर। ओके, उनके उनमें ज्यादा कुछ सिमिलरिटी दिखाई नहीं देगी। करेक्ट। लेट अस मूव अहेड। कैन यू टेल पॉइंट इज देयर? व्हाट डू द शॉर्ट फॉर्म्स? DR means डॉक्टर, SM means हेडमास्टर, AC means AC जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ओके, AC सबको मालूम ही होगा। ओके, एयर कूलर। ADV यानी एडवोकेट, CM चीफ मिनिस्टर। ओके, DC डायरेक्ट करंट। ओके, ऑल these are the long forms of these short forms. Okay, तो अब ये why it is given here. Okay, this is what we have to learn, that how the elements are named after their name with the short names. Okay, in day-to-day life we use short forms. Once again we start from this paragraph. In day-to-day life we use short forms in many places. A similar method is used to indicate elements. ओके, अपने डे टू डे लाइफ में जो हम लोग कभी कभी जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं हम लोग। कभी कभी अपना नाम भी इनिशियल में लिखते हैं, दैट इज आल्सो शॉर्ट फॉर्म। ओके, इवन मेनी ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स आर देयर, इवन इन योर जीके सब्जेक्ट आल्सो you must have learned the short forms. Okay, the same method is used for indicating or for showing the names of elements. Okay, then the scientist Berzelius was the first to use the present method of using symbols for elements. The symbol of an element is written in the English script and is the short form of its name. Okay, यहाँ पर जो ऊपर मैंने एक साइंटिस्ट का दिखाया था, ओके, दिस जॉन डाल्टन ने ऐसे साइन दिए थे। ओके, ये साइन एक्सेप्ट नहीं हुए, व्हाई? रीजन कोई अगर बता गेस कर सकते हो क्या? नाउ हियर यू कैन सी टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, तो कितने एलिमेंट्स के साइन ध्यान में रखने? ओके, वो ध्यान में रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया होता। So because of that, the scientists, what they decided to use the first letter of the element. अब देखो हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन का पहला H यानी S से डिटेक्ट होता है, हाँ इट इज हाइड्रोजन। ओके, अब हीलियम का नाम भी S से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए क्या किया उन्होंने, वो सेकंड लेटर उन्होंने उसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ऐसा फर्स्ट लेटर्स, और नहीं तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो सेकंड लेटर, फिर से रिपीट हो रहा है तो 3 लेटर, ऐसे 3-4 लेटर तक एग्जांपल्स हैं। ओके, बट दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, सपोज व्हेन वी सी दिस Mg से हमें पता चला, हाँ ठीक है ये मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। ओके, तो तुरंत वी इजीली वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ओके, वो नाम जल्दी से ध्यान में आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इंग्लिश स्क्रिप्ट इज डिसाइडेड एंड इट इज रिटन द फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर ए स्मॉल। ओके, सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर लिस्टेड इन द टेबल अलोंगसाइड।
when the initial letter in the names of two or more elements is the same. ओके अगर दो नहीं तो ज्यादा ऐसे एलिमेंट का अगर सेम आता है पहला लेटर, then a pair of letters is used to write the symbol. For example, we write C for carbon and Cl for chlorine. Right? The same way here, H for hydrogen and He for helium. Okay, यहाँ पर C for carbons, Cl for chlorine and Ca for calcium. Okay, देखो अगर ये तीनों एलिमेंट्स है कार्बन, क्लोरीन एंड कैल्शियम, अगर पहला लेटर लिया सी तो क्या व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड, कार्बन, क्लोरीन और कैल्शियम. सो फॉर दैट पहला कौन आता है, कार्बन आता है तो उसको सिंगल लेटर दे दिया. दूसरा कौन सा आता है, क्लोरीन आता है तो Cl दे दिया उसको. ओके तो यानी जो क्लोरीन में H इज साइलेंट, इसलिए उसका नाम Ca शॉर्ट फॉर्म Cl कर दिया. मैंने Cl से तुरंत पता चलता है हाँ क्लोरीन. इसको Ca कर दिया. अब इसको Cl नहीं कर सकते थे, लेकिन कैल्शियम में ज्यादा प्रोनाउंस होने वाला कौन सा है, C और E, इसीलिए उसको Ca कर दिया. यानी वो तुरंत समझ में आना चाहिए. ओके देन फ्रॉम द इंटरनेट, हियर एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू पीपल. आप लोगों ने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. फ्रॉम द इंटरनेट और रेफरेंस बुक्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स एंड प्रिपेयर अ टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन बिलो. ओके नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल, डिस्कवरी, उसकी स्टेट, इंफॉर्मेशन एंड यूजेस. ओके मिनिमम ऐसे 10-15 एलिमेंट्स का करो. ओके आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा उसका. Then next, can you tell activity is given, right? In that first question is used. What is the question? Which metals do we use in day-to-day life? कौन से मेटल यूज करते हैं हम लोग? आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, ओके मर्क्यूरी यूज करते हैं डे टू डे. मर्क्यूरी तो डे टू डे यूज में नहीं आता. ऐसे बहुत सारे मेटल्स विच वी यूज आर मेटल्स एलिमेंट्स. अगर ये मेटल्स एलिमेंट्स है या नहीं. ओके तो एलिमेंट्स, मेटल तो एलिमेंट्स हो सकते हैं अगर एक ही एटम के बने हैं तो वो एलिमेंट्स. ओके अगर वो उसके अंदर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर मिक्स, देन इट इज नॉट एन एलिमेंट. राइट? एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, metals and non-metals. We have studied the properties of metals such as malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, density, luster and sonority. All these properties we have learned already before in standard 6th. Okay, एलिमेंट ये किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी. क्या क्या प्रॉपर्टी है? Okay, the first point is given के elements are generally classified into two groups, metals and non-metals. Okay, तो एलिमेंट्स किस में भी हो सकते हैं, मेटल्स में भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है. ओके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देन वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मीनिंग आप लोगों को पता होगा. ओके वो अगर उसको कितना भी ऊपर से अगर किसी दूसरे वस्तु से अगर ठोकते हैं तो वो क्या होता है, उसका पतला ऐसा पतरा वगैरह ऐसा तैयार होता है. ओके डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, दैट सब्सटेंस कैन बी converted into the thin wire, that is ductility. Conductivity of heat and electricity means it conducts heat and electricity, that is the property of metal. Then उसकी density, उसको density होती है, उसको luster होता है यानी वो चमकता है. ओके sonority यानी उसको अगर बजाया कुछ आवाज किया तो उसका आवाज होता है. ओके that is the meaning of sonority. Right, so all these are the properties of metals. Next point, the elements that do not show these properties are called non-metals. Okay, and जो elements ये ऊपर जितनी भी properties दी है वो properties दिखाते नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? non-metals. For example, कौन से example दिए? phosphorus, sulfur, chlorine, okay, hydrogen, oxygen, ये सारे non-metals. Okay, the elements that show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. Okay, यानी कुछ elements वो ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ properties metals की दिखाते हैं, कुछ properties non-metals की दिखाते हैं. Okay, तो ऐसे जो होते हैं वो कुछ metals की property दिखाने वाले, कुछ non-metals की property दिखाने वाले, उनको बोलते हैं metalloids. Okay, so remember that elements are of
three types. Okay, metals, non-metals, and metalloids. Okay, make it clear. Once again, I am telling elements are of three types: metals, non-metals, and metalloids. What are these metalloids? This is the third group of elements. ओके अब ये मेटालॉइड्स में कौन से आते हैं? आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड्स. ओके, ये यानी क्या होता है? ये आर्सेनिक, सिलिकॉन और ये सेलेनियम, ये जो है एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाते हैं. राइट? सो दे आर कॉल्ड एज metalloids. Then to the right side, what is given? Do you know the wire that we see in the electric bulb in our house is made of the element tungsten? Okay, अब तो वो बोल रहे हैं nowadays, now these LED bulbs are there in every house almost. Okay, ट्यूब भी LED आ गई, बल्ब भी LED आ गए. लेकिन अगर पहले वो पुराने बल्ब थे, कांच का ऐसा बाहर से ट्रांसपेरेंट दिखाई देता, उसके अंदर वो एक वायर दिखाई देती थी. ओके, तो वो जो ऐसी स्प्रिंग जैसी वायर उसको चिपकी होती है, वो वायर कौन से मेटल की थी? टंगस्टन. ओके, उसको टंगस्टन का सिंबल क्या है? W. जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, वैसे टंगस्टन का सिंबल दिया है उसको W. Is derived from its German name Wolfram. Similarly, the symbols of silver. Okay, सिल्वर, चांदी. ओके, उसका सिंबल क्या, उसको सिंबल क्या दिया है? Ag. Why? Because it is their German name. And gold का दिया है Au. All these are derived from their Latin names, argentum and aurum. Okay, ये टंगस्टन नाम कहाँ से दिया है? ये जर्मन नेम है, वॉल्फ्राम. ओके, ये सिल्वर और गोल्ड का फ्रॉम द लैटिन नेम, दैट इज आर्जेंटम एंड ऑरम. उनका लैटिन में नाम है आर्जेंटम एंड ऑरम, उसका ही शॉर्ट फॉर्म किया है. और उनको जनरली कॉमन नेम में क्या वी कॉल इट एज सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Au respectively. Elements occur in solid, liquid और gaseous state. Elements कौन से भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं. राइट? Some metals are difficult to use in pure form. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि हम लोग उनको प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. राइट? फॉर एग्जाम्पल, प्योर आयरन रस्ट इन एयर. Pure gold is very soft and bends easily. The properties of the original metal can be modified by mixing one or more elements in it. Such a mixture of metals is called an alloy. Okay? कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि उनको डेली यूज में यूज करना बहुत हार्ड होता है. ओके, क्यों हार्ड होता है? अब एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द प्योर आयरन. ओके, लोखंड अगर ले लिया तो लोखंड का प्रॉब्लम क्या है? अगर वो प्योर अगर आयरन होता है तो इट रस्ट वेरी क्विकली इन एयर. ओके, हवा में जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो हवा में क्या होता है? पानी भी होता है, ओके, एंड ऑक्सीजन भी होता है. तो ड्यू टू दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट स्टार्ट्स रस्टिंग यानी गंजनी. ओके, इवन प्योर गोल्ड का भी ऐसा है. हम लोग जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो प्योर गोल्ड के नहीं होते, उसमें थोड़ा सा दूसरा मेटेरियल उसमें मिक्स करना पड़ता है. ओके, जनरली सिल्वर इज मिक्स्ड. ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ताकत आती है थोड़ी सी. और वो जो हम लोग जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो ऑर्नामेंट्स जैसे जो भी शेप में बना है उस शेप में रहते हैं. ओके, अगर प्योर गोल्ड के बनाए, प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड इट इज कॉल्ड. अगर 24 कैरेट गोल्ड के अगर हमने ऑर्नामेंट्स बनाए तो वो दैट गोल्ड इज सो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है कि वो जल्दी बेंड हो जाता है. इसीलिए कौन सा भी गोल्ड स्मिथ सोनार लोग वो 24 कैरेट के नहीं बनाते. वो कितने भी एडवर्टाइज में बताते हैं 24 कैरेट सोना वगैरह, लेकिन होता नहीं है. ओके, the properties of the original metal can be modified by mixing one or more elements in it. Okay, so the properties of the original metal can be modified. Okay, जो ओरिजिनल मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की जाती है. ओके, जैसे
प्योर आयरन की रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी है, प्योर गोल्ड की बेंड होने की प्रॉपर्टी, उसको चेंज किया, मॉडिफाई करना है ना, चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं? बाय मिक्सिंग वन और मोर एलिमेंट्स इन इट। ओके, एंड ऐसा जो दूसरा एटम दूसरे या ये दूसरा एलिमेंट मिक्स करने के बाद जो नया कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड एन एलॉय। उसको बोलते हैं एलॉय। मीन्स व्हाट? when one or more elements are mixed with each other, the whatever result we get, that is called an alloy. Okay, brass, steel, okay, then 22 karat gold are a few examples of alloys. Okay, all these, now these steel utensils we see every day in our kitchen. Okay, अपने किचन में होते हैं वो स्टील। ये तो तीन तीन एलिमेंट का बना हुआ है स्टील, इसीलिए वो इतना पक्का होता है स्टील के, बहुत कड़क होता है। अब तो स्टील के तो बहुत सारे इवन बेंचेस बना रहे हैं। ओके, इवन बहुत दरवाजे भी बना रहे हैं कुछ लोग। ओके, वैसे ये 22 कैरेट गोल्ड, ओके 24 कैरेट का जो सोना होता है प्योर गोल्ड, उसके ऑर्नामेंट्स बन ही नहीं सकते जनरली। सारे के सारे ये जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। Okay, next question is asked, which of the elements are metals, which are non-metals, and which are metalloids? That examples you have to search. Okay, यहाँ पर find out करना। आप लोगों को लिए एक्टिविटी दी है। ओके, तो एक्टिविटी में करना क्या है? कुछ नहीं, आप लोगों ने सिर्फ मोबाइल पर, नहीं तो अपना लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी होगा उस पर गूगल में जाकर गूगल पर टाइप करना है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ सब एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, एंड एग्जांपल्स ऑफ metalloids. Okay, पूरी लिस्ट आ जाएगी। okay, after this next point is compounds. Okay, but by seeing the length of the video, I think I should wind up here. Okay, I will come back with the new video with the next point, that is compounds. Okay, thank you.